بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر ان میں سے ہر ایک گھوڑے کا ایک ایک پاؤں لے لے، مگر اختلاف یہ تھا کہ جسم کا کیسے حصہ کریں، کیونکہ وہ چاروں بیوقوف بھائی تھے۔ اسی کشمکش میں ادھر ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، بھائیو آپ میں کس بات کا اختلاف چل رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال دوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا کہ اس گھوڑے کو ہم برابر برابر کیسے بانٹیں؟ اس شخص نے کہا کہ اس گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پہ رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ لیٹتے ہی ان کو چاروں کو نیند آ گئی۔ جب ان کو گہری نیند آ گئی تو وہاں سے ایک چور نکلا اور اس نے دیکھا کہ چاروں گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا اور آہستہ سے گھوڑے کے پاس گیا، گھوڑے کی رسی کھولی اور گھوڑے کو لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی جب اس نے دیکھا گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائیوں کو خبر دی کہ ہمارا گھوڑا نہیں ہے، وہ لگتا ہے چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا کہ سو جو، رمضان لے گیا ہوگا، صبح اس سے لے لیں گے۔ صبح چاروں اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ چاروں بھائی میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ یہ اونٹ کے پیروں کے نشان ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ نر اونٹ کے نشانات ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا لگتا ہے یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشانی کی حالت میں آ رہا ہے۔ ان چاروں بھائیوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا نر اونٹ اور دوسرے نے کہا ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا کہ مہار کو توڑ کر نکلنے والا۔ اس شخص نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹ کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ ان چاروں بھائیوں نے کہا ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر ڈھونڈو۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو ساری انفارمیشن ہے، تم کیسے انکار کر رہے ہو کہ اونٹ آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہی میرے اونٹ کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے پاس چلو، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ چاروں بھائی اور 5واں اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو ایک انسان کے پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا یہ عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے یہ کہا کہ یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا بھئی یہ عورت حاملہ لگتی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ بھائیو راستے میں تم نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا شاید ناراض ہو کے گھر سے نکلی تھی۔ اس شخص نے کہا ہاں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے خیال میں حاملہ بھی تھی۔ اس شخص نے کہا ہاں۔ تیسرے نے کہا کہ عشاء کے وقت گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر بعد میں چاروں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور اپنی بیوی کی تلاش کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح انفارمیشن دی ہے، تم پر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم کہتے ہمیں نہیں پتا؟ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ ان چاروں نے کہا اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر تم کو اعتبار نہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ چنانچہ وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے ہی چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ بھائی رمضان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت ایک شخص گھر میں نکلا اور اس نے کہا کہ رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ تم پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں تمہارا گھوڑا کیسے لے گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر انہوں نے ساری باتیں بادشاہ کو باری باری بتائی۔ اونٹ کے مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہ انہوں نے ساری انفارمیشن میرے اونٹ کے بارے میں صحیح بتائی اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں اونٹ کا پتہ نہیں۔ میرے خیال میں میرے اونٹ کو انہوں نے ہی چرایا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے، ان لوگوں نے اس کے متعلق صحیح معلومات دی، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں لوگ ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں لوگوں سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور
हमारी बात पहले ध्यान से सुन ले। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमज़ान ने कहा, अली जान, मुझे इसके मतलब बिल्कुल भी खबर नहीं। मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लेकर आए हैं। बादशाह सलामत ने पूछा कि जब रमज़ान घोड़ा चुरा कर लेके जा रहा था, तुम में से किसी ने इसको देखा? उन्होंने कहा कि हजूर, हम में से किसी ने भी इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा कि जब तुमने देखा ही नहीं, फिर क्यों इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? उन चारों भाइयों ने कहा कि हजूर, ये हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं, दरअसल हम इल्मे गैब जानते हैं। हमें सब कुछ इस इल्म के ज़रिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा कि मैं तुम चारों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आया वाकई तुम लोग इल्मे गैब जानते हो? उसके लिए मैं किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्मे गैब जानते हो और तुम बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक के अंदर बंद करके उससे पूछा कि बताओ, संदूक के अंदर क्या चीज़ है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे, देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि कोई गोल गोल चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा कि इसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज़ है। तीसरे ने कहा कि इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा कि कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कह रहे हैं और इल्म को जानते हैं। चुनाचा बादशाह ने कहा कि रमज़ान को कि इसका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों को कहा तुम अपनी बीवी और अपने ऊँट को जाकर तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म रखते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इससे भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवाएं थी। ये लोग थक कर चूर हो चुके थे। वहीं पे गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली जब उन्होंने देखा बकरी का छोटा बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने कहा, क्यों भाई? उसने कहा कि भेड़ें जो हैं वो डंडे तोड़ रही हैं और ये हमें मारने का प्लान बना रहे हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक बकरी का बच्चा उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक भाई ने पत्थर उठाकर उस बकरी के बच्चे को मार दिया और कहने लगा, भाई मैंने तो इसको मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो ये थक गए और उनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घोड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने इनसे पूछा कि अरे भाई, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ है? उन चारों ने एक ज़बान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और हमें मारने के लिए आपस में सरगोशी कर ले रही थी। ये कहकर कहने लगे, अपनी गिनती करो कि हम पूरे हैं। चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को भूल गया और कहने लगे, हम 3 हैं, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा कि मैं गिनता हूँ, ये 1, ये 2 और 3। वो अपने आप को भूल गया और कहने लगा कि वाकई हम 3 हैं, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। और इसी तरह चारों भाइयों ने गिनती की, अपने आप को नहीं गिना और वो 3 ही शुमार करते रहे। वो यही समझते रहे कि चौथा भाई गुम हो गया है। घोड़े सवार ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो? उन्होंने कहा कि फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमको ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घोड़े सवार ने एक भाई का हाथ पकड़ा और एक साइड पे कर दिया और कहने लगा 1, इसी तरह दूसरे का हाथ पकड़ा साइड पे करके कहने लगा 2, इसी तरह तीसरे का हाथ पकड़ा और कहने लगा 3 और इसी तरह चौथे का हाथ पकड़ा साइड किया और कहने लगा 4। घोड़े सवार ने इस तरह पूरे गिनती कर दी, चारों भाई को पूरा कर दिया। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घोड़े सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करवा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बकरी का बच्चा लैला नजर आया, जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने बताया कि ये वही बकरी का बच्चा है जिसको हमने मारा था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों पर नजर पड़ी तो वो फिर भाग उठे। घोड़े सवार बकरी के पास गए और उन हर एक के ऊपर सर के ऊपर तबकी दी। फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। उसके बाद उसने कहा कि आओ मेरे साथ तुम चलो। घोड़ा सवार जो था वो भेड़ बकरियों को लेकर साथ चल पड़ा। ये चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी इनके साथ आ गए। उन चारों में से एक को कहा कि तुम भेड़ बकरियों के लिए मैं घास काट कर लेकर आओ, और दूसरे को कहा कि तुम गंदम की कटाई करके अच्छे से सलीके से रखना, और तीसरे को कहा कि मेरी माँ का खास ख्याल रखना, उस पर मक्खियाँ ना बैठे, उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। मुख्तलिफ काम इन चारों की सुपुर्द करके वो खुद अपने काम में मशगूल हो गया।
जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घोड़े सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो उसको डंडे से मारता। वो बेचारी ना चीखती चिल्लाती, 3-4 डंडे लगने से वो बेचारी मर गई। जब वो बिल्कुल साकत हो गई तो उसने सोचा कि वो आराम कर रही है। अब उसने उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे घास खिलाने का काम था, लिहाजा उसने जानवरों को ज़िबा करके उनके सर ज़मीन में दफन कर दिए। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा ये तो बहुत ही मेहनत का काम है, क्यों न इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने, जो भेड़ों को लेकर चला गया था। वो भेड़ें चुरा रहा था कि अचानक 1-2 वहाँ भेड़िया निकल आए और भेड़ बकरियों को खाने लगा। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं, जो भेड़ों को खा जाते हैं, इनके मालिक इनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ बकरियों को वहाँ छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घोड़ा सवार वापस आया तो कहने लगा, एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छे से खिदमत की है ना? उसने कहा कि जनाब क्या पूछते हैं आप, जब से आप गए हैं उस वक़्त से आपकी माँ आराम कर रही है। जब उसने चादर उठाकर अपनी माँ के मुंह से देखा तो देखा कि उसकी माँ का चेहरा खून आलूद है और वो मर चुकी है। घोड़ा सवार परेशान हो गया और उसने फौरन सोचा कि दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा तो उसने कहा कि अभी तक बैल के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब घोड़े सवार ने देखा उनके सर कटे हुए और भूसे में दिए हुए हैं, उसके बाद फिर उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? उसने खुशी खुशी जवाब दिया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भूल लिया है। जब घोड़े सवार ने देखा तो पूरी फसल को आग लगाकर ख़त्म कर दिया गया था। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ है? उसने कहा कि इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे, वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं। मैंने उन पर तरस खाया और उनको ऐसा करने से नहीं रोका। घोड़े सवार ने सारी बातें सुनी और अपना सर पीटना शुरू कर दिया और चारों को जमा करके कहने लगा कि तुम लोगों ने मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि मेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ़, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम ऐसा करो, बेलचा कैंची लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। एक ने गेंती मारी और दूसरे ने अपना कान वहाँ रखा। इसी तरह चारों भाइयों ने अपना कान रखा। कहने लगे, कान से बड़ी कब्र बन गई है। उन्होंने सोचा कि घोड़ा सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है। ये सोचकर वो घर वापस पहुंचे तो घोड़ा सवार बड़ा ही परेशान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। घोड़े सवार ने उनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी है कि ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो मुश्किल काम तो नहीं है, हम कब्र खोद आए हैं। घोड़े सवार ने कहा, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, मालूम नहीं कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। फिर उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे मगर जगह नजर नहीं आ रही थी। जो अपनी दनिस्त में वो कब्र खोद गए थे तो वो कब्र कैसे नजर आती, जबकि एक ही गेंदती उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती दूर से ही उसकी मिट्टी नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया। बिल आखिर उनको वो जगह मिल गई। तब उन्होंने कहा कि इधर आइए, ये रही कब्र। घोड़े सवार ने जब देखा वो हैरान रह गया और कहने लगा, इसमें इंसान की मैयत कहाँ आएगी? फिर बोला कि तुम जाकर मेरी माँ की लाश को ले आओ, मैं खुद कब्र खोदूंगा। वो चारों चले गए और मुर्दे को चारपाई पे रख कर दौड़ते हुए कब्रिस्तान आए, मगर रास्ते में मुर्दा वहाँ कहीं गिर गया और चारपाई खाली कब्रिस्तान लेकर दौड़ते हुए पहुँच गए। कब्रिस्तान पहुँचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घोड़े सवार ने कहा कि लाश ले आए हो? वो कहने लगे कि हम लाश लेके आ रहे थे लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि हम अब यहाँ पहुँच गए। हमने जब इसको देखा तो चारपाई खाली है। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए? घोड़ा सवार बोला कि जल्दी से फौरन से मेरी माँ को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, वरना मैं आप चारों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा, चलो हमारे साथ चलो। चारों ने ज़बरदस्ती पकड़कर उस बुढ़िया को चारपाई पे लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही मगर उन्होंने उनकी एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घोड़े सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसको ज़बरदस्ती पकड़कर लेकर आए हैं। घोड़े सवार ने जब देखा तो उस बुढ़िया से माफ़ी मांगी और कहने लगे, इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को गुम कर दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठाकर लेकर आए हैं।
اس کے بعد وہ خود اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور اپنی ماں کی میت کو ڈھونڈا اور اس کو دفن کیا۔ وہ گھوڑا سوار ان 4 بیوقوفوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے ان چاروں کو دھکے مار مار کے اپنے گھر سے نکال دیا اور خود سکھ کا سانس لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔